Last time we were discussing about the types of selling, and I told you that it may be asked in the form of uh, types of sellers, types of selling, yes, selling function. So it may be asked with any name, right? So same chart you have to describe in the examination. I hope we have discussed. I told you that in totality you can segregate the selling function into three types. The one is order taker, the order creator, and order getter. Order takers, I told you, is the person who sit behind the, you know, behind the reception or behind the seat or table, you can say, who wait for the customer to come and take their orders on a copy or on a pad, right? So they are the order takers. Order creators, I told you, who create the order but not uses the product or service. They only create the order. And they help the company in creating the orders. For example, doctors. Whenever any new medicine come, they don't take the medicine. Doctors won't take the medicine, but they prescribe it to the patients because the company's whole market depends on doctors. Because if they do not prescribe the medicine, the company will not be able to sell the medicine in the market if no one prescribes, right? So doctors can be called as the creators of the market for the company or the medicine. Same is the architects. The architects suggest what cement, what block, what kind of iron, steel, whatever the things we use in making the house. They suggest the person while building the house. So they are also the order creators. Same is your mechanic. The mechanic suggests that what mobile you use in your car or bike, what tire you use in your vehicle, right? So they also suggest the things. So companies who are dealing with such kind of products like medicine, building materials or automobile, they convince the mechanics, they convince the architects, they convince the doctors also because they are very crucial for them. And without their suggestion, their product may not be able to sell in the market. So they are the order creators. Order getters, I told you, simply the persons who are moving here and there, moving all around in the local area and abroad, and try to expand the business, try to take the orders of distributor, retailers, and other parties. Any kind of order they can get for the company. So they are simply the order getters, right? Order takers with three, we have told inside, delivery salespeople outside. I don't think if you have any problem, if any problem is there, you can ask because all the things we have discussed in this. Clear tha yahan tak? Yes, sir. Okay. A simple distinction is there. Sometimes if you need to elaborate the chart or sometimes in the short notes, if it is asked that what is the key difference between an order taker and an order getter. So what you need to tell is just look at the chart. Simply, we have taken the basis of comparison, and on that basis, we have distinguished order taker and order getters. The first is the basis which we have taken as the objective. Like what is the main objective of order taker and order getter? So in case of order taker, the objective is, taker means the first slide, the first one. Handle routine product orders. As I told कि ये वो बंदा है जो टेबल के पीछे बैठा हुआ है, ठीक है. रूटीन प्रोडक्ट्स के जो ऑर्डर आ रहे हैं, आप बिग बाजार में जाते हैं, ठीक है. बिग बाजार में बिल काउंटर पर या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई बंदा बैठा हुआ होता है, या किसी आप विशाल मेगा मार्ट में या मार्ट में जाते हो तो आप री ऑर्डर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पेस्ट पहली बार खरीद रहे हो, साबुन पहली बार खरीद रहे हो, या आप कोई और चीज पहली बार खरीद रहे हो, आप उसको रिकरिंग है, मतलब बार बार आप खरीदते हैं, ठीक है. तो री ऑर्डर जनरली वो लेता है कि आप खरीद के जाते हो, वो बिल कर देता है, पैसे आप दे देते हैं और वापस आ जाते हैं. तो ही इज द वन, उसका जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि रूटीन चीजों को हैंडल करना है.
रीऑर्डर्स ले रहे हैं। जबकि जो ऑर्डर गेटर्स है वो क्या कर रहे हैं, दे फाइंड द न्यू कस्टमर्स एंड अनकवर कस्टमर नीड्स। जो रूटीन वाले हैं वो उनका हिस्सा नहीं है ऑर्डर गेटर्स का, उसके लिए तो ऑर्डर टेकर बैठा हुआ है, ठीक है। वो उन कस्टमर्स को ढूंढेंगे, उन कस्टमर्स को तलाशेंगे जो कंपनी से फर्स्ट टाइम जुड़ेंगे, जो नए होंगे, एंड दे अनकवर कस्टमर नीड्स, ठीक है। या जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी नीड्स हैं, उनको वो अनकवर करना चाहते हैं, उनको फाइंड आउट करना चाहते हैं, ताकि उनको उन्हीं के अनुसार प्रोडक्ट्स वो सजेस्ट कर सके या दिखा सके, ठीक है। तो दे आर बेसिकली दी ऑर्डर गेटर्स। सेकंड हम ले सकते हैं कंपैरिजन का बेसिस परचेज सिचुएशन, किस सिचुएशन में वो परचेजिंग हो रही है, ठीक है। तो उसके बेस पर ऑर्डर टेकर्स की अगर हम बात करें, फोकस ऑन स्ट्रेट रीबाय और सिंपल परचेज सिचुएशन। एज आई सेड कि रीऑर्डर लेते हैं, ठीक है। तो रीबाय बेसिकली सिचुएशन है जहां पर जो कस्टमर है वो आपसे खरीद रहा है प्रोडक्ट और बार बार खरीद रहा है, लगातार आप ही से ही वो परचेज कर रहा है। तो कंडीशन जनरली वैसी ही रहती है और स्ट्रेट रीबाय रहता है वहां पर। और सिंपल परचेज सिचुएशन होती है। सिंपल परचेज सिचुएशन का यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है, आपको कन्विंस नहीं करना। जो कोलगेट खरीद रहा है, ठीक है, या जो टाटा सॉल्ट घर लेकर जा रहा है, वो आपसे पूछेगा नहीं कि सिर्फ टाटा सॉल्ट में क्या खूबी है या कोलगेट में क्या इंग्रेडिएंट है, इस पे प्राइस कितना है, क्या वट एवर। तो सिंपल परचेज सिचुएशन है, आपने बोला, आपने खरीदा एज अ कस्टमर और आपने उनको बेच दिया। कोई कन्वर्सेशन होगा ही नहीं इन चीजों में, ठीक है। ब्रेड बटर एफएमसीजी के प्रोडक्ट, आशीर्वाद आटा खरीदा आपने, कुछ भी खरीदा, तो वो सिंपल परचेज सिचुएशन का पार्ट है जिसमें हार्डली एनी कन्वर्सेशन अकर्स। हार्डली यू हैव टू कन्विंस द कस्टमर बिकॉज ही इज ऑलरेडी कन्विंस, ही हैज अ माइंडसेट। कस्टमर अपने माइंडसेट से आ रहा है कि उसको क्या खरीदना है और आपको उसको बेचना है। जनरली ये ऑर्डर रीऑर्डर और रीबाय की सिचुएशन में ये सारी चीजें आती हैं। जबकि जो ऑर्डर गेटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फोकस ऑन न्यू बाय एंड मॉडिफाइड रीबाय परचेज सिचुएशन। थोड़े सेल्समैन वही होंगे शॉप पर ही, जो आप रूटीन खरीदने जाएंगे अगर, तो थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि सर ये डव का शैम्पू आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक बार ये वाला ट्राई करके देखिए, ठीक है। आप ये फॉर एग्जांपल एनी, आप लॉरेल का शैम्पू आया, मान लीजिए गार्नियर का कोई शैम्पू है, तो आप ये ट्राई करके देखिए। तो व्हेन यू कन्विंस द कस्टमर, यू आर ट्राइंग टू मोल्ड द कस्टमर और टेक द कस्टमर इन अ डिफरेंट वे फॉर अ डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। आप दूसरे प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करते, उसको खरीदवाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो फोकस ऑन न्यू बाय एंड मॉडिफाइड रीबाय। तो मॉडिफाइड रीबाय का ये पार्ट हो गया। और न्यू बाय मतलब कि कोई नया कस्टमर है जिसने कोई प्रोडक्ट उससे पहले वो खरीदा नहीं है, उसको फर्स्ट टाइम आप वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ऐसी सिचुएशनों में बेसिकली ऑर्डर गेटर्स डील करते हैं। एक्टिविटी की अगर हम बात करें कंपैरिजन में, तो एक्टिविटी ऑर्डर टेकर्स की क्या रहेगी, परफॉर्म ऑर्डर प्रोसेसिंग फंक्शन। जनरली वो जो ऑर्डर आया है उसको प्रोसेस करने का जो फंक्शन है, ऑनलाइन चढ़ाना, उसकी बिलिंग करना, यह सारी चीजें वो काउंटर पे संभालने का काम करते हैं ऑर्डर टेकर्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा कि बिग बाजार में जनरली जो कैश काउंटर पे जो बिलिंग कर रहे हैं जनरली वो ऑर्डर टेकर्स का पार्ट है, ठीक है। या रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जो पर्सन आपसे ऑर्डर ले रहा है जनरली वही बिल भी देता है। आप जब अपना नाश्ता पानी फिनिश कर लेते हो तो ही कम टू यू विद द बिल, विद द डायरी इन व्हिच द बिल इज देयर। You see the bill and you give the money out there only. You don't need to go to the cash counter, ठीक है। वहीं का वहीं पेमेंट आप दे देते हो। तो they simply deal with the processing function and order getting functions. Order getters क्या कर रहे हैं, act as creative problem solvers, जिनका काम ये भी है कि आपकी प्रॉब्लम को सुने, ठीक है। तो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स के तौर पर काम करते हैं और सिर्फ उनका यही काम नहीं है कि आपको ऑर्डर सुन लें और आपको ऑर्डर डिलीवर कर दें, ठीक है। दे विल इंटरेक्ट विद यू, दे ट्राई टू फाइंड आउट दैट वेदर यू आर लाइकिंग देयर प्रोडक्ट्स और नॉट, you prefer their services or not,
and if any problem is there regarding the service or any product, they need to suggest you the solution. Or if they don't have the solution, they need to write down it properly so that next time when you will come, you will not face the same situation again. Right? So this is the part of the order getters. This is the part of their activity, daily activity की बात हो रही है. Now, when you talk about the training as a basis, तो order takers में क्या है? Require significant clerical training. Very simple kind of training is required, in which they need to understand the ERP or the software of the company, and once they are clear about that where to feed what kind of data, they simply take the orders and deal with the routine kind of situation. तो मोर ओवर आप कह सकते हो कि जो एक क्लरिकल काइंड ऑफ जॉब है वो उनकी रहती है. डेली आना, डेली चेक करना, ठीक है, प्रोडक्ट्स कितने बिक गए, कितने बच गए, हिसाब किताब रखना, और कैश में डील करना, कितनी सेल हो गई आज, ठीक है. ये सारी चीजें बेसिकली जो डील करते हैं वो ऑर्डर टेकर्स डील करते हैं. जो ऑर्डर गेटर्स है वो क्या कर रहे हैं? दे रिक्वायर सिग्निफिकेंट सेल्स, प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर ट्रेनिंग. इनको थोड़ी सी एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें कि कस्टमर से डील करना, कस्टमर्स की क्वेरीज को हैंडल करना, प्रोडक्ट जो भी हैं उन प्रोडक्ट्स की पूरी नॉलेज रखना, ठीक है, सेल्स को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे कन्विंस करना है, वो सारी जानकारी रखना. ये सारी चीजें बेसिकली उनके ट्रेनिंग का हिस्सा होती है ऑर्डर गेटर्स. क्लियर है? यस सर. Yes, sir. ओके. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद अगर हम बात करें आपके फर्स्ट यूनिट में लास्ट टॉपिक रह जाता है सेलिंग थ्योरीज का, क्योंकि ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड everything in the first unit except the selling theories. So if we talk about the selling theories, normally as you can see 6 theories, 6 basic theories we need to understand here. 6 theories हम यहाँ पर पढ़ेंगे, and repeatedly from the last 2 years I have seen the papers. Theories are being asked in the examination, and sometimes it is asked in the short note, a single theory. For example, what is the spin model, what is the ADAS theory, so that is asked in the short note. Otherwise this question may come in the long also. ठीक है, तो long में भी पूछा जा सकता है कि describe any 2 theories or any 3 theories with name. So सारे ही हम यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं. Very first theory, very basic theory, and the most popular one also. ठीक है, it is the ADAS theory of selling. ADAS theory is based on 5 you can say stages, 5 words which interconnect each other. What these words are? The one is A means attention, I means interest, D means desire, A means action, and S means satisfaction. ठीक है, आप देख भी रहे हैं with a single arrow from bottom to top. You are going like this. Simple theory है ADAS theory, जो ये कहती है आप सेलिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप इन स्टेप्स को फॉलो ना करें. क्योंकि देखिए थ्योरीज हैं वो सेलिंग की है, ठीक है. तो ये बात क्लियर है कि यहाँ पर जो भी बात की जा रही है वो बेचने के उपलक्ष्य में की जा रही है, यानी कि आपको सेल करने के लिए की जा रही है. सो वट एवर यू नीड टू सेल whatever you need to sell has to be in the way, like first you need to draw the attention, get the attention, interest, desire, then action, and then satisfaction.
तो अगर हम इस पे बात करें, अटेंशन सिंपली व्हाट डज इट मीन? अटेंशन, पहली चीज तो ये है, कस्टमर की आपको अटेंशन गेन करनी पड़ेगी। कस्टमर की आपको अटेंशन गेन करनी पड़ेगी, ठीक है। इफ द कस्टमर इज नॉट अटेंटिव, जनरली व्हाट हैपेंस के एट द टाइम व्हेन द सेल्स पर्सन टॉक और इंटरेक्ट विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, ठीक है, वो बोलना शुरू कर देते हैं। वो ये देखते हैं कि सिंस द कस्टमर इज देयर, चला ना जाए कहीं, ठीक है, या किसी और प्रोडक्ट की तरफ वो मूव ना कर जाए, या कोई दूसरा सेल्स पर्सन, क्योंकि कंपटीशन भी है ना आपस में, तो उसी कंपनी का कोई दूसरा अगर सेल्स पर्सन खड़ा हुआ है, उससे जाके बात ना करने लग जाए, तो उसकी सेल काउंट हो जाएगी, मेरी रह जाएगी। तो सेवरल थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो कस्टमर की अटेंशन होना बहुत ही जरूरी है। आप कुछ बोल रहे हैं और कस्टमर सुन नहीं रहा, या उसका ध्यान कहीं और है, और आपने बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, और जब जब कस्टमर ने देखा कि आप उससे कुछ कह रहे हैं, तब वो आपकी बात को सुनता है, जब तक आप आधा बोल चुके हैं, तो वो चीज काम नहीं करेगी। इसीलिए एडास थ्योरी में कहा गया है कि आप अपना जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको तब स्टार्ट करें, सेलिंग के प्रोसेस को, जब आप देख लें कि कस्टमर का अटेंशन आपकी तरफ है, वो अटेंटिव है, वो कहीं बिजी नहीं है। अटेंट, अब बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है इसमें, ठीक है, वो फोन पे बात तो नहीं कर रहा, वो किसी के साथ मतलब अगर दो लोग बैठे हुए हैं और आपको एक से बात करनी है, वो दूसरे से बात कर रहा है, तो वो भी सिचुएशन नहीं होगी, वो अटेंटिव नहीं होगा, ठीक है। वो टीवी देख रहे हैं, अगर अगर मान लीजिए, ठीक है, आप घर पे गए मिलने के लिए, एंड इफ द टेलीविजन इज ऑन एंड ही इज लिसनिंग टू द न्यूज और सम चैनल, अगेन दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम and the customer may not be attentive. So in that situation, you can request the customer to either mute the television for a while or be attentive to listen what you want to say. आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट वे में, आप कह दीजिए कि सर 2 मिनट में लूंगा, आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, ठीक है, थोड़ी देर अगर आप बुरा ना माने तो मैं टीवी को म्यूट कर दूं या टीवी बंद कर दूं। तो जब आप ये रिक्वेस्ट कर देंगे तो कस्टमर सोचेगा कि अच्छा चलो सुन लेते हैं, ठीक है। और आप ऐसे ही, अगर वो टीवी भी चल रहा है, बात भी चल रही है, और आप अपनी भी बात कर रहे हैं, तो आधी बात सुनेगा, आधी वो नहीं सुनेगा, ठीक है। तो अटेंशन पहली चीज है। अगर इफेक्टिवली चाहते हो सेल्स का प्रोसेस, इफेक्टिवली आप चाहते हो करना, और वाकई में आप लास्ट तक पहुंचते पहुंचते सेल करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहला स्टेप है अटेंशन गेन करनी ही पड़ेगी, चाहे जैसे आप करें। क्लियर? उसके बाद अटेंशन के बाद क्या आ रहा है? इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट। आपने अटेंशन ले ली कस्टमर की, अब देखिए पूरा फोकस आपके ऊपर है, आपके ऊपर है कस्टमर का। वो कहेगा हाँ भाई बताइए, चलिए आप बात बताइए क्या है। तो भाई उसको आपको डाउन भी नहीं करना। आपने पता चला ऐसी बात बताई या इस तरीके से बात बताई कि उसको इंटरेस्ट ही नहीं आया, ठीक है, या उसे लगा कि यार मैंने बेकार टीवी बंद किया, मैंने बेकार फोन अपना बंद किया, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं है, या ये जो बता रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो आपको इतना इफेक्टिवली बात करनी है, बातों ही बातों में, कि वो उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। सपोज करिए कि आप किसी के पास बैठे हैं, फर्स्ट टाइम गए हैं मीटिंग करने, और आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली लोगों को चाहिए होता है, बट उसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम भी रहता है सभी लोगों को, लेकिन पूरी डिटेल सबको नहीं मालूम होती नॉर्मली। तो आपने अटेंशन ली, मतलब आपने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और फिर आपने बातों ही बातों में इस तरीके से बात शुरू करी कि उनको इंटरेस्ट आने लगा, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हम सब बात कर चुके हैं, ये कोई भी बात मैं नई नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको मैंने सेल्स पर्सन के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, ये मैंने आपको अफेक्टिव सेलिंग के समय पे भी ये सारी चीजें डिस्कस की थी कि आप किस तरीके से अपनी बात शुरू करते हैं। ये एक आर्ट, बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होता, ठीक है।
आप किताबों में पढ़ते हैं, ये थ्योरी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये थ्योरी आप पढ़ेंगे और एग्जाम में लिखाएंगे, ठीक है, मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन ये थ्योरी पढ़ के आप एक अच्छे सेल्समैन बन जाएं जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक कि इसको आप प्रैक्टिकली समझ ना लें, इसको अपने बिहेवियर में इनकॉर्पोरेट ना कर लें, और मार्केटिंग फील्ड में जब तक इसको आप खुद से टेस्ट ना कर लें, तब तक ये थ्योरी पढ़ना और लिखना दोनों बेकार है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इंटरेस्ट की बात क्या आ रही है कि आपने अटेंशन अपनी तरफ ली, और भी तो होंगे। आपने अटेंशन लेने के बाद आपने इंटरेस्ट को क्रिएट किया, ठीक है। आपको मालूम है, बहुत ही, देखिए, ये एक आर्ट है, जैसे मैंने अभी बताया ना, बहुत से बहुत बोरिंग प्रोडक्ट को भी, मतलब आपको लगता है कि क्या इंश्योरेंस में क्या कर सकते हो, इंश्योरेंस जैसी चीज जिसको हर आदमी बोरिंग चीज समझता है, मतलब बोरिंग इन दी सेंस के उसमें, अब मैं आपसे कहूँ कि साहब कोई ऐसा, हाँ ऑटोमोबाइल है, कार बेचनी है, बाइक बेचनी है, तो कुछ इंटरेस्ट आएगा कि हाँ यार ठीक है, थोड़ा चला के देख लेंगे, टेस्ट ड्राइव ले लेंगे, तो दैट क्रिएट्स द इंटरेस्ट। बट व्हेन आई टॉक अबाउट इंश्योरेंस, तो सेलिंग इंश्योरेंस, सेलिंग म्यूचुअल फंड, सेलिंग एसआईपी, सम काइंड ऑफ बोरिंग प्रोडक्ट, बट सेल्समैन को बेचना, तो सेल्समैन को उनमें भी, बोरिंग प्रोडक्ट्स में भी क्या डेवलप करना है आपका, इंटरेस्ट, ठीक है। सो दैट्स एन आर्ट। तो आप अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, और स्टार्ट करते करते आप उसका इंटरेस्ट को डेवलप करते हो, ठीक है। वो पहली कॉल से नहीं होगा, पहले कस्टमर से नहीं होगा। जब आप 4-6 लोगों से बात कर लेते हो, 10 लोगों से बात कर लेते हो, तो आपको समझ में आता है कि मुझे क्या बात करनी थी जिससे उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। ये आप खुद सीखते हैं एक्सपीरियंस से। थर्ड, तीसरे लेवल पे बात आती है डिजायर। डिजायर, देखिए नॉर्मली अभी कस्टमर हो सकता है ही वॉज नॉट इन द मूड ऑफ परचेजिंग द पॉलिसी, ठीक है, वो माइंडसेट के साथ बैठा था, उसे नहीं खरीदनी थी, उसके पास थी भी नहीं, ठीक। आपने 2 मिनट मांगे, उसने 2 मिनट दिए आपको, आपने उसकी अटेंशन भी ली, ठीक है, उसने अपना काम धंधा छोड़कर, मान लीजिए शॉप पे बैठा था अपनी शॉप पर, कस्टमर का काम उसने दूसरे बंदों पर छोड़कर आपके साथ बैठ गया कि ठीक है साहब, आप 5 मिनट आपसे बात कर लेते हैं। आपने 5 मिनट लिए, आपने अटेंशन ली, आपने इंटरेस्ट क्रिएट भी कर दिया। इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद जो नॉर्मल सी एक उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसकी नीड थी कहीं ना कहीं, ठीक है, या उसके बातों ही बातों में उसके डिजायर को भी पता कर लिया कि वो क्या चाहता है, ठीक है, बातों ही बातों में आपने डिजायर भी पता कर लिया कि वो ये चाहता है कि यार हेल्थ इंश्योरेंस में कभी भी वो अगर हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो या कोई बात हो जाए, उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए, तो कम से कम उसका 25-50 लाख रुपए का इंश्योरेंस या मेडिक्लेम हो, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स की फीस बहुत हाई है। दिल्ली जैसे हॉस्पिटल में आप कोरोना के इलाज के लिए 1-1.25 लाख रुपए डेली ले रहे हैं, आप सोचिए जरा, तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट टू टॉक अबाउट दिवस सिचुएशन, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं उसका जो डिजायर था, क्योंकि भाई डिजायर इस केस में यही होगा कि मेडिक्लेम की आप बात करेंगे, ठीक है, तो आपने इंटरेस्ट जनरेट करते करते उसके डिजायर को, वो सोच भी नहीं सकता, वो ये सोच रहा था अभी तक कि बरेली के हॉस्पिटल्स को वो अपने साथ में लेके सोच रहा था कि भाई कुछ हुआ तो मैं गुड लाइफ जाऊंगा, या मैं SRMS जाऊंगा, या मैं कहीं और जाऊंगा। उसके दिमाग में दिल्ली नहीं था, तो दिल्ली वॉज वेरी कॉस्टली फॉर हिम। लेकिन आपने उसको ये भी सजेस्ट कर दिया कि सर, पहली बात तो आप ऐसा ना हो, लेकिन अगर कभी होता भी है तो आप दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, मैक्स में, फोर्टिस में, या किसी और में आप अपना इलाज करा सकते हैं इस पॉलिसी से, ठीक है। तो ये जैसे ही आप सजेस्ट करोगे, उसके दिमाग में क्या बात आएगी, उसके दिमाग में बात आएगी कि यार हाँ, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं, और अगर 10-15 हजार प्रीमियम देके, 20 हजार प्रीमियम देकर सालाना मैं अगर ये फैसिलिटी मुझे मिल सकती है, तो आप सोचिए कि उसको व्हाट काइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड ही विल गेट, बिकॉज ही विल बी टोटली फ्री, कि भाई उसको मालूम है कि मेरा 5-10 लाख का, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, और अगर कोई बात होती है तो आई कैन गेट दी सर्विसेज ऑफ द डॉक्टर्स विच आर देयर इन मैक्स एंड फोर्टिस। सो दैट इज अ काइंड ऑफ जंप फ्रॉम द बेसिक नीड टू द डिजायर। आपने सीधे
इंटरेस्ट क्रिएट करते करते उसके डिजायर पे उसको पहुंचा दिया। ठीक है, तो डिजायर पे बात आ गई। डिजायर पे ही आप हैं और आप बात कर ही रहे हैं अपनी। बात करते करते आपने फिर से कन्वर्सेशन आगे बढ़ाई और उसको थोड़ा सा हिसाब किताब समझा दिया कि सर मैं उसका भी मूड नहीं बना है, डिजायर तक तो आपने पहुंचा दिया। ठीक है, डिजायर उसको टच कर लिया कि हाँ ऐसा मैं सोचता हूँ और ये मेरे पास होना चाहिए, ये यहाँ तक पहुंच गया। लेकिन खरीदने का मन अभी बनाना है, उसको अभी बेचना है। फिर आपने कैलकुलेशन करके उसको बताया, सर यू आर एट द एज ऑफ 30 राइट नाउ। ठीक है, 30 साल पे आप लेते हैं ये वाला पॉलिसी। ठीक है, आपका प्रीमियम जाएगा, मान ले रहे हैं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 15,000 रुपये। क्लेम मिलेगा आपको 10 लाख का, मतलब 10 लाख का पॉलिसी कवर। ठीक है, आपका अभी मैं कोई भी टेस्ट नहीं करा रहा हूँ, मेडिकल टेस्ट मतलब नॉर्मल आपका शुगर टेस्ट भी नहीं होगा, आपको ऐसे ही पॉलिसी इशू हो जाएगी बिकॉज यू आर एट द एज ऑफ 30। आप मत लीजिए अभी पॉलिसी, आप 2 साल बाद लेते हैं या 5 साल बाद लेने का मन बनाते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि यू रीच एट द एज ऑफ 35, तो 35 पे सर यही पॉलिसी मैं आपको बेचूंगा, लेकिन तब 15,000 प्रीमियम नहीं होगा, इसका 20,000 प्रीमियम होगा। बिकॉज एज द एज इंक्रीजेस, ठीक है, द प्रीमियम इंक्रीजेस। एंड जो अभी मैं आपसे कोई टेस्ट भी नहीं करवा रहा हूँ, तब मैं आपको 35 साल की उम्र पे अगर आपको मैं पॉलिसी दूंगा, ठीक है, तो आपके ये टेस्ट होंगे, जिसमें आपका ईसीजी होगा, जिसमें आपका लिपिड प्रोफाइल होगा, जिसमें आपका ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, सब चीजें होंगी, शुगर वगैरह का सबका टेस्ट होगा। तो वो थोड़ा सा सोचेगा कि यार 5 साल बाद 5 साल किसने देखे। ठीक है, तो जो काम 5 साल बाद करना है वो वाई नॉट फ्रॉम टुडे। तो वो कैलकुलेशन करेगा दिमाग में, यार बात तो सही कह रहे हो, 30 साल की उम्र में मुझे सारी चीजें ऐसी मिल रही हैं, कुछ किए बिना, ना कोई टेस्ट है ना कुछ है, प्रीमियम भी कम है, और साथ ही साथ आपने ये भी बता दिया कि सर अभी से अगर आप पॉलिसी चालू करते हो तो प्रीमियम ऑलमोस्ट यही रहेगा। जब आप 40 साल पे फ्रेश पॉलिसी खरीदोगे तो 20,000 है, और अगर सेम कंटिन्यू रहता है तो इसका 1-2 हजार का डिफरेंस आएगा सेम पॉलिसी पर। तो उसको बात समझ में आ जाएगी। तो आपने क्या करा, डिजायर पे पहुंच चुका था, लेकिन डिलेमा में था, करूं ना करूं, इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, या रुक के करूं या पहले करूं या अब करूं, ये इसके दिमाग में चल रहा है। आप पढ़ रहे हो, ठीक है, यू आर रीडिंग ऑल दी थिंग्स ऑफ हिज माइंड, एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन आपने यहाँ पर एक्शन लेने के लिए उसको क्या कर दिया, मजबूर। ठीक है, यही क्वालिटी है, और बीच में कोई गैप नहीं है, पॉज नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहले अटेंशन का फेज खत्म हो रहा है, फिर इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, फिर डिजायर हो रहा है, फिर एक्शन हो रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आपके कन्वर्सेशन में ये चीज नहीं है। ठीक है, आपका कन्वर्सेशन कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, तो आपने जहां वो एक स्टेप नहीं ले पा रहा था, वहां आपने वो चीज पिच कर दी कि सर ऐसा होगा, आप सोच लीजिए, मेरा नंबर आप सेव कर लीजिए। ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, आप मत खरीदिए, लेकिन जब आप 5 साल बाद खरीदेंगे तो ये होगा। ये उसने आपको क्लियर कट बता दिया। फिर आप क्या करोगे, चल यार तू ठीक है इशू कर दे। ठीक है, वो फाइनली ही इज रेडी टू टेक दी पॉलिसी, और आप उस समय पर पॉलिसी निकालते एंड डिटेल उसकी भर के उसको उसको उसका चेक रिसीव करते एंड फाइनली दी सेल इज डन। क्लियर? लास्टली क्या रह जाता है, सेटिस्फेक्शन। पॉलिसी हो गई, सोचा नहीं था उसने, ठीक है, कि वो पॉलिसी खरीदेगा। अगर सोचा भी था कि चलो हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, लेकिन इतने प्रीमियम का या इतने फैसिलिटी का या फीचर्स का वो उसने नहीं सोचा था। ठीक है, लेकिन फिर भी खरीद लिया। तो सेटिस्फेक्शन होना, पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन होना, ठीक है, ये भी जरूरी है। उसको ये ना लगे कि आप बातों ही बातों में उसको बेच के चले गए, ठीक है, या उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया है, तो आप उसको फुली पैचअप करने के लिए, उसको गड्ढा होता है ना, जैसे गड्ढा आपने खोदा है उसको पूरा भर के वैसा ही आपको बना देना। तो आप बॉन्ड भी उसको ऑनलाइन उसकी हाँ, इफ यू कैरी द लैपटॉप, यू फिल द डिटेल इन फ्रंट ऑफ हिम,
आप सारी डिटेल उसके सामने भरोगे जब वो फाइनली डिसीजन ले लेता है। अब ये उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। अगर वो ये कह रहा है कि ठीक है यार 10 मिनट में और दे रहा हूँ आपको, यू फिल द डिटेल्स इन फ्रंट ऑफ मी, और इफ ही सजेस्ट कि यार ये डॉक्यूमेंट रख लो, मेरा आधार कार्ड रख लो, मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट या फला फला वट एवर डॉक्यूमेंट, मेरी एड्रेस बुक है ये रख लो, डेट ऑफ बर्थ जिसमें है, ठीक है, तो ये सारी डिटेल तुम रख लो और अपने आप से इसको फिल करा देना, ठीक है, और मुझे बता देना या गिव मी अ मैसेज। अगर वो ये बात कह रहा है तो आप वहां से वो सारी चीजें कलेक्ट कर लीजिए और वहां से उठ जाइए। अगर वो ये कह रहा है कि यार मेरे सामने भर दो डिटेल्स, ठीक है, 10 मिनट और ले लो, और फिर अगर आप ये कह रहे हो कि सर मुझे डॉक्यूमेंट दे दीजिए मैं घर या ऑफिस से भर दूंगा, तो आपको नहीं कहना। तो उसके दिमाग में क्या आएगा, फिर वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा कि यार सामने नहीं भरी डिटेल उसने मेरे, ठीक है। कोई कोई भी शक की गुंजाइश आपको नहीं रखनी है। तो आपको अगर वो कह रहा है कि सामने भर दो, तो सामने आपको भरने के लिए तैयार होना है। आप अपना लैपटॉप खोलिए, डिटेल भरिए उसी के सामने ही और ओके कीजिए, ठीक है। और फाइनली उसको बता दीजिए कि सर 6 से 7 दिनों में, हफ्ता 10 दिन में आपको ये बॉन्ड कंपनी से मिल जाएगा, ठीक है। नहीं पहुंचेगा आपके एड्रेस पर, मेरे कंपनी के एड्रेस पर आएगा तो मैं पर्सनली लाके आपको ये दे दूंगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। उसके बाद भी जो चीजें रह जाती हैं, फिर अगर आपका कोई ऐप है जिससे आप फैसिलिटी दे रहे हो, आपका कोई मैसेज है, कोई व्हाट्सएप का अगर आपका कोई ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें आप उसको ऐड कर सकते हो, जस्ट टू गिव अ रिमाइंडर ऑफ द प्रीमियम, ठीक है। जैसे हम लोगों के भी, आप लोगों के यहाँ घरों में प्रीमियम दे रहे होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह चल रहे हैं, तो व्हाट दे डू इज कि जब फाइनली हम वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे मेरे केस में क्या है कि मैंने जिसके थ्रू पॉलिसी ले रखी है उसका एक ऐप है खुद का, वो ऐप वो डाउनलोड करवा देते हैं फोन पर, और उसका पासवर्ड हमें मिल जाता है। जैसे हम उसको खोलेंगे ऐप को, उसमें हमारा हेल्थ इंश्योरेंस हमें दिख जाता है और उसी में रिमाइंडर भी मिल जाते हैं, उसका प्रीमियम भी आता है। तो नेक्स्ट ईयर जैसे ही आपका प्रीमियम आने की डेट होगी, वो आपको एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले से रिमाइंडर दे देगा कि सर आपका प्रीमियम ड्यू। उसके साथ ही और भी जो फैसिलिटीज है वो उसमें है। जैसे हमने उनसे सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा, लेकिन LIC की पॉलिसी, ठीक है, म्यूचुअल फंड, और अगर SIP भी चल रही है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें शो हो रही है। या और कोई अगर इंश्योरेंस पहले से मैंने करा रखा है किसी और से, वो भी उसमें शो हो जाएंगे। ये सारी फैसिलिटी एक्स्ट्रा है। ये तब दे रहा है जब आपको वो सेटिस्फाई कर रहा है उससे जुड़ने के बाद, यानी कि आपने उसका प्रोडक्ट खरीदा और ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको फुली सेटिस्फाई करके चले। तो ऐप बेसिकली वो लास्ट में दे रहे हैं, ठीक है। तो दीज ऑल थिंग्स आर बीइंग डन एट द लास्ट जस्ट टू सेटिस्फाई यू। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो दिस वाज द एडास थ्योरी। ये मैंने थोड़ा समय इसलिए लगाया इसमें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है और जनरली ये पूछी जाती है, ठीक है। तो एडास वैसे तो आप लिख दोगे 5 स्टेप में, खाली डिस्क्राइब भी कर दोगे, बट पांचों में क्या डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, इसीलिए मैंने आपको स्टेजेस में समझाया, क्योंकि एक ही कन्वर्सेशन में वो सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो आपको जंप करते जाना है बस। आपने देखा, अटेंशन दी, आपने तुरंत इंटरेस्ट क्रिएट किया, बातों ही बातों में उसके डिजायर को जाना, और डिजायर तक पहुंचकर जहां वो रुका हुआ है कि डिसीजन लूं या ना लूं, उसकी हेल्प करी और आपने एक्शन लिया, तो फाइनली उसको सही डिसीजन लेने के लिए कन्विंस करके सेटिस्फाई कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें हो रही है, ठीक है। तो 50 सेकेंड्स रह गए, तो इफ देयर इज नथिंग टू आस्क, इसमें बाकी जो थ्योरीज हैं, ठीक है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिर ये मैं यहीं पे स्टॉप कर दूं, ठीक है। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, Sir. sir. Thank you, Thank sir. you, sir.